In the previous class, we have discussed about the adsorption, and we have discussed that the adsorption is the phenomena in which the molecular species are going to accumulate over the surface of a solid or a liquid. The phenomena is termed as adsorption. Now, today we will discuss certain phenomena together with the mechanism of adsorption and physioadsorption together with chemioadsorption. We will discuss certain phenomena from our day-to-day life. That is, when animal charcoal is placed in a closed container containing gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide, ammonia, oxygen, nitrogen, then we observe that after certain time the pressure is going to decrease. The pressure is going to decrease because these gases are adsorbed at the surface of animal charcoal. That's why there is decrease in the pressure. To the next, when we have aqueous solution of sugar, and when this aqueous solution of sugar is passed over the beads of animal charcoal, in sugarcane factory, beads of animal charcoal is used to remove the coloring impurities inside the sugar, and we have the sugar which is colorless. The next, when we buy a new shirt or a pant, then it contains a small packet that contains silica gel. Why it is so? Because the silica gel, it is capable to absorb the moisture present in the atmosphere. So it prevents the excessive moisture inside our fabric and hence prevent from fungus. These are the certain phenomena from which we can observe the adsorption from our day-to-day life. Let us discuss it. तो हमने क्या डिस्कस किया? पहला, the first one, certain gases when we placed charcoal in a closed container containing gases like hydrogen, oxygen, ammonia, NH3, sulfur dioxide, etc. Then the pressure in the container is going to decrease. This is so because these gases are adsorbed on the surface of charcoal. To the next, when we have an aqueous solution of sugar, an aqueous solution of sugar is passed over the beads of animal charcoal, then the sugar
then the sugar becomes colorless. To the next, if we have a solution of organic dye such as methylene blue, if we have a solution of organic dye such as methylene blue, and when we add animal charcoal to it and is shaked well, then the solution becomes colorless due to adsorption of organic dye over charcoal. So the next we have air becomes dry in the presence of silica gel. Because the water molecule in the atmosphere get adsorbed over silica gel. These are the certain phenomena which we observe in our day-to-day life, by which we can observe the phenomena of adsorption. तो क्या क्या हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई क्लोज कंटेनर है और उसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, और जब उसके अंदर हम चारकोल को प्लेस करेंगे तो देखेंगे कि आफ्टर सर्टेन टाइम द प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज. कुछ समय बाद जो उसके अंदर उस क्लोज कंटेनर के अंदर का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि ये जो गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ये क्या करेंगी? ये जो चारकोल है उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे, इसीलिए क्लोज कंटेनर का प्रेशर डिक्रीज करेगा. हमारे चीनी मिल में जो शुगर बनता है वो कलरिंग इम्प्यूरिटीज कंटेन करता है, लाइट येलो कलर का होता है. तो उसको कलरलेस करने के लिए बीड्स ऑफ एनिमल चारकोल के ऊपर उसका एक्वस सॉल्यूशन हम पास कराते हैं. जब हम एक्वस सॉल्यूशन एनिमल चारकोल के ऊपर पास कराएंगे तो जो एनिमल चारकोल है उसके ऊपर जो कलरिंग इम्प्यूरिटीज हैं वो क्या करेंगी? एड्सॉर्ब हो जाएंगी. इसीलिए अब हमें जो शुगर मिलती है वो क्या है? कलरलेस है. द नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है और उसके अंदर ऑर्गेनिक डाई है और उसमें हमने चारकोल को डाल के और क्लोज करके और शेक किया उसको वेल, तो आफ्टर जब शेक करने के बाद वो सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक डाई है वो चारकोल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगी और इसलिए हमारा सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा. दीज आर द सर्टेन फिनोमिना which we observe from our daily life which is related to adsorption. To the next, we have also discussed जो सिलिका जेल है. जब हम नए फैब्रिक को खरीदते हैं, कोई कपड़ा नया खरीदते हैं
तो इसमें छोटा सा एक, तो जो सिलिका जेल होते हैं वो क्यों फैब्रिक में रखा जाता है? क्योंकि एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट हमारे फैब्रिक में ना आए, नहीं तो फैब्रिक में फंगस लग सकता है। इसीलिए हमारे पैकेट्स में एक छोटा सा पैकेट होता है जिसमें सिलिका जेल के ग्लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे राउंड शेप के ग्लोब्यूल्स होते हैं। वो क्या करता है? दैट विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन आवर फैब्रिक। हमारे फैब्रिक में जो मॉइस्चर होगा उसको सिलिका जेल क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और हमारा कपड़ा खराब होने से, फंगस से बच जाएगा। टू द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म क्या है? तो वी विल डिस्कस इट बाय ड्राइंग ए डायग्राम। लेट अस डिस्कस इट। सपोज वी हैव दिस मेटल, suppose we have this solid. In this case, if we are discussing about a bulk molecule, this one is the bulk molecule. If a molecule is present in the bulk, then it has balance forces. Balance forces, it means it is also surrounded by other molecules, due to which it has zero force, net zero force. It has net force on the molecule in the bulk is zero. But when a molecule is present at the surfaces like this, then they have molecule at the inner side or the bulk side, whereas they haven't molecule on the outer side here. So for that, this molecule has unbalanced or residual or attractive forces, which is responsible for adsorption to take place. क्या है? अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, हमने एडजॉर्बेंट लिया है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, तो हमने सॉलिड लिया है। हम डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूल कहाँ होगा? बल्क के अंदर होगा। बल्क मतलब कंटेनर के अंदर किसी साइड में होगा, कहीं भी, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, कहीं भी, नॉट एट द सरफेस। सरफेस का डिस्कशन हम कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या होगा? इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, नेट जो फोर्सेस होंगे वो जीरो होंगे, क्योंकि उसके चारों तरफ सराउंडिंग मॉलिक्यूल है, और जब सारे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और इसीलिए इसको कहेंगे हम बैलेंस फोर्सेस। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल कहां हो? सरफेस पे हो, किसी भी सरफेस पे हो, तो जब मॉलिक्यूल सरफेस पे होगा तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं वहां अनबैलेंस फोर्स है, रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसीलिए एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स को ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने देखा व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। पहला, इट मीन्स व्हाट वी हैव, इट मीन्स द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क has balance forces because of presence of molecules surrounding it. But
the molecules which are present at the surfaces present at surfaces which are present at the surfaces have residual attractive forces which is responsible for adsorption to take place. The next thing is that when the number of such molecules which is present at the surfaces, it is going to increase. If it is going to increase, then there will be increase in the unbalanced forces, molecules having unbalanced forces. Therefore, the process of adsorption will increase. It means when we increase the surface area, then the number of molecules having unbalanced forces will increase. Therefore, the adsorption will increases. इसका मतलब अगर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम कहेंगे अगर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाते हैं तो जो सरफेस पे रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नंबर बढ़ेंगे, और जब उनके नंबर बढ़ेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनकी संख्या बढ़ेगी, इसीलिए जो एडजॉर्प्शन है उसका रेट बढ़ेगा. द नेक्स्ट इज दैट on increasing the surface area, the number of molecules having unbalanced forces, residual forces will increase. Therefore, there will be increase in the rate of adsorption. This is what we discussed about the mechanism of adsorption. To the next we will discuss another factor which is also, we can say, which is also responsible for adsorption to take place, or we can say by the means of which we can discuss the mechanism of adsorption. We know what we know. When the adsorption takes place, then there will be increase in the there will be decrease in the residual forces, and when there is decrease in the residual forces, then there will be decrease in the surface energy. It means the adsorption is accompanied with the decrease in the surface energy, due to which there is release of heat. It means the adsorption process is exothermic process. First point. The next point, when there will be adsorption, then the degree of freedom, or we can say the freedom of the adsorbed molecule will be decreased, and they have restricted freedom. That's why the entropy of the system will decrease. It means the adsorption process accompanied with the decrease in the entropy. By knowing this fact, we will discuss the adsorption and the temperature dependency on the adsorption processes. Let us see. The first point we have the adsorption process. The adsorption process, in case of adsorption, there is decrease in residual
residual forces, and due to which there is decrease in surface energy. Which appears as heat. This indicates that adsorption process is exothermic, or we can say delta H is equals to negative. क्या होगा जब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स थे उनके जो रेसिडुअल फोर्सेस होंगे वो डिक्रीज करेंगे। जब रेसिडुअल फोर्सेस डिक्रीज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की जो सरफेस एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब एडजॉर्प्शन होने से सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब वो एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, निकाल रहा है एडजॉर्प्शन के प्रोसेसेस में। और जब एनर्जी निकलेगी देन दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जिसमें हम डेल्टा एच एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, नेगेटिव। तो हमने पहला पॉइंट पाया कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। दूसरा हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन process, the adsorbate molecules are bonded with, are held with adsorbent surfaces. Therefore there is decrease in the entropy of the system. It means therefore delta S is negative. तो हमने क्या देखा, जब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो जो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स फ्री थे, और जो फ्री थे वो क्या हुए, एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे। वो कोई भी हो सकता है। फिर जो एडजॉर्प्शन में तो बांधने के लिए हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, तो एटलीस्ट वो बंधे ना। व्हेन दे आर अटैच्ड देन द डिग्री ऑफ रैंडमनेस विल डिक्रीज, और जब डिग्री ऑफ रैंडमनेस डिक्रीज करेगी तो सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। अब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, एकम्पनीड हो रहा है, तो उसके लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना एडजॉर्प्शन। तो फॉर दैट, फॉर स्पॉन्टेनियस, नेक्स्ट वन, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लेकिन इनकी जो वैल्यूज है हम उसको पुट करेंगे। हमारे पास क्या है, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, तो वी विल राइट डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी, और जो हमारे पास डेल्टा एस है
डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है, तो विल राइट नेगेटिव डेल्टा एस। जब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है, तो हमको डेल्टा जी क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। व्हाट वी रिक्वायर, वी रिक्वायर दैट द डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो इस डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर डेल्टा जी इज नेगेटिव, व्हाट वी हैव, डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस से क्या होना चाहिए, हमारे पास बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। तो टी डेल्टा एस कैसे नेगेटिव होगा हमारे पास, तो डेल्टा एस को टच नहीं कर सकते क्योंकि डेल्टा एस हमारा नेगेटिव है। तो कैसे होगा, अगर हम टेम्परेचर को, इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और प्रोसेस डेल्टा जी, ये टी डेल्टा एस बड़ा होने लगेगा और डेल्टा जी लेसर नेगेटिव होने लगेगा, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस से क्या होने चाहिए, लेस स्पॉन्टेनियस होने लगेगा। मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ेगी, और जब टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ेगी तो अगर मान लीजिए टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एस से बड़ी हो गई तो हमारा डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। व्हाट इट मीन्स, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन की जगह डिसॉर्प्शन होने लगेगा। डिसॉर्प्शन क्या होता है, इसको डिस्कस कर लें। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट के सरफेस से एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना ही डिसॉर्प्शन है। तो कब होगा वो, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर हमने डिस्कस किए दैट विल हेल्प अस टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन।